بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، خوش آمدید۔ تو میں ہوں بنت بتول انڈیا سے، اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل پیاری اردو۔ یہ چینل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اردو زبان سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی پیاری اردو زبان کی اہمیت کو سمجھیں اور ہماری اردو زبان کو اتنا عام کریں کہ اردو کے پڑھنے والے ہر گھر میں موجود ہوں، کیونکہ الحمدللہ جو مٹھاس ہماری اردو زبان میں ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ تو پھر چلیے ہمارے اس مقصد میں آپ بھی ضرور شامل ہو جائیں۔ تو ہمارے ہر ویڈیو میں 3 سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ، جسے سن کر ہم الفاظ کی صحیح تلفظ سیکھ پائیں گے، اور ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہم اردو کی بنیادی تعلیم یعنی بیسک لرننگ سیکھیں گے، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم 5 مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے پورے تفصیل کے ساتھ، اردو ٹو اردو۔ تو پھر چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا آپ یہ کلپ دیکھیے۔ رامین بیٹا، تلفظ اور املا کی درستی کے لیے درخواست کو پڑھو۔ اوکے سر۔ بدبخت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ باخدمت جناب ہے۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، امید ہے آپ بغیرت ہوں گے۔ او باجی، آنکھیں کھول کے غور سے پڑھو۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ فوزیہ اپنے ماموں کے ہاں ملنے گئی۔ لا حول ولا قوت، فوزیہ لکھا ہوا ہے وہاں؟ لکھا تو ہے۔ او فدویہ لکھا ہے میری ماں۔ فدویہ اپنے ماموں کے ہاں ملنے گئی، وہاں دیکھا کہ انجینئر درختوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ انجینئر تو اب درختوں پہ ہی لٹکیں گے، اور غور سے پڑھو، انجیر درختوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ انجیر درختوں پر لٹکے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیسے پھپھو ندی والی روٹی کھانے سے۔ اور پھپھندی والی روٹی ہے میری ماں۔ پتہ نہیں کیسے پھپھندی والی روٹی کھانے سے میں بیمار ہو گئی۔ مجھے ایک دن کی رخصت عنایت فرمائیں، این نوازش ہوگی۔ جی جناب، تو دیکھا آپ نے، اگرچہ ہم الفاظ کو صحیح طریقے سے نہ پڑھیں گے تو کتنی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ انجیر کا انجینئر بن سکتا ہے، اور باخدمت کا بدبخت بن سکتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے معنی کیسے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ کو سیکھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس پہلے سبق میں ہم سب سے پہلے ان حروف تہجی کی پریکٹس کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے اردو کا پہلا جو حروف تہجی میں سب سے پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے، جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے الف، یعنی اس کو کہتے ہیں ALIF، الف۔ تو یہ الف ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے بے، یعنی یہ ہے بے، اس کو کہتے ہیں اس حرف کو کہتے ہیں بے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کی اچھے سے مشق کرنی ہے۔ یہ الف ہے اور یہ بے ہے اور یہ پے ہے۔ تو اس کو اس طرح سے بھی ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ الف کو کچھ نہیں، بے کے نیچے ایک نقطہ، تو اس کو بولتے ہیں نقطہ، یعنی یہ شکل جو ہے یہ بے کی شکل ہے۔ تو یہ سیم شکلیں آتی ہیں ان 5 حروف کی۔ تو اس کے نقطوں سے اس کا جو تلفظ ہوتا ہے، جو اس کا مخرج ہوتا ہے وہ بدلتا ہے۔ تو بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے 3 نقطے، پھر اس کے بعد آتا ہے تے، تے کے پیٹ میں 2 نقطے، پھر اس کے بعد آتا ہے ٹے، ٹے کے پیٹ میں توئی کی نشان، پھر اس کے بعد آتا ہے سے کے پیٹ میں 3 نقطے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پے، PEY پے، اور یہ ہے تے، THEY تے۔ تو یہاں پر دے نہیں پڑھنا ہے، اسے تے پڑھنا ہے، یعنی اگر ہندی میں لکھیں گے تو تا، اس کی آواز آئے گی اسے تے کو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے ٹے، ٹے
TEY, तो ये है टे के पेट में तोय की निशान। फिर ये है यहाँ पर से, तो से SEY से, ठीक है। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे आएगा, इसका आवाज़ हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको, हिंदी पढ़ने वालों को हिंदी में आसानी से समझ में आ सके और इंग्लिश पढ़ने वालों को इंग्लिश में। तो ये है बे, ये है पे, ये है ते, और ये है टे, और ये है से। देखिए, इस तरह से हुरूफ तहज्जी के पहले 5 हुरूफ आपने प्रैक्टिस करने हैं अच्छी तरह से। ये है अलिफ, अलिफ को कुछ नहीं, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के पेट में 2 नुक्ते, टे के पेट में तोय की निशान, से के पेट में 3 नुक्ते। फिर उसके बाद आती है जीम की बारी। तो जीम हम लिखेंगे इस तरह से, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ पर ये है जीम, JEEM, जीम, ठीक है। तो ये है जीम, तो जीम के पेट में 1 नुक्ता, है को कुछ नहीं, ये है, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा और फिर ये ऐसे जाएगा, है। फिर इसके बाद है खै, तो खै के ऊपर 1 नुक्ता, सॉरी, जीम के बाद आएगा यहाँ पर चीम, चीम के पेट में 3 नुक्ते, तो चीम की आवाज़ आती है CHEEM, चीम की आवाज़ आती है चा से, यानी ये वाला चा। तो चीम लिखेंगे इस तरह से हम हिंदी में, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये है चीम। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है उर्दू हुरूफ को सीखने के लिए। हुर्फ माने एक, हुरूफ माने कई, हुर्फ माने सिंगुलर, हुरूफ माने प्लूरल, ठीक है। तो हुर्फ को हर्फ भी कह सकते हैं, दोनों ही सही वर्ड है। हुर्फ भी कह सकते हैं, हर्फ भी कह सकते हैं। एक से ज़्यादा को हम कहेंगे हुरूफ। ये हर्फ है और ये सारे हुरूफ हैं। तो सबसे पहले उर्दू सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम लिखना पढ़ना उर्दू सीखने के लिए ये हुरूफ तहज्जी को अच्छे तरह से मश्क करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये है अलिफ, ये है बे, ये है पे, ये है ते, ये है टे, ये है से, ये जीम, चीम, है, खै। तो इस तरह से पहले आज की वीडियो क्लास में आप मश्क करेंगे ये 10 हुरूफ। अलिफ को कुछ नहीं, बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के पेट में तोय की निशान, से के पेट में 3 नुक्ते, फिर जीम के पेट में 1 नुक्ता, चीम के पेट में 3 नुक्ते, है को कुछ नहीं, खै के ऊपर 1 नुक्ता। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, हम इंटरेस्ट से, शौक़ से सीखेंगे तो इस तरह से पहले आप ये सीखना, ये इसकी मश्क कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ये इस तरह से आएगा बे। तो इसी एक बे के 7 नुक्ते और
निशान बदलने से इसके जो हुर्फ होते हैं, हर्फ के जो आवाज़ होती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन 10 हुरूफ की। फिर हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे दाल से। ठीक है, आगे हमारा है थर्ड सेगमेंट, जो कि हम 5 मुश्किल अल्फाज के मायने सीखेंगे। ये हमारे थर्ड और आखिरी सेगमेंट में। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है मुताक़िब, मीम ते आइन अलीफ ख़ाफ बे। मुताक़िब यानी ताक़िब करने वाला। ते आइन अलीफ ता ख़ाफ बे ख़िब, ताक़िब। ताक़िब करने वाला। और यानी पीछे पे, ये छीम है, ये पीछे, आने अलिफ मद आ, नून ये ने, आने वाला, पीछे आने वाला। नंबर 2, दूसरा फ़रोग़, फे दे वाव गैन फ़रोग़, मतलब रोशनी। रे वावशी नून ई, रोशनी यानी चमक। रौनक, मुताक़िब मतलब जब हम किसी का पीछा करते हैं तो उसे कहते हैं ताक़िब करना या पीछे पीछे चलना। अगर किसी का पीछा कोई करते हैं तो उसको कहेंगे पीछा करने वाले को मुताक़िब। और फ़रोग़ का मतलब है रोशनी, चमक या फिर रौनक। मतलब अगर हम किसी बात में कहते हैं कि इस काम को और ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, मतलब इसको और चमकाने की ज़रूरत है, इस पर और रोशनी डालने की ज़रूरत है, इसका ये मतलब होता है। तीसरा लफ्ज़ है फ़साहत, फ़े स्वाद अलीफ फसा हैते हत, फ़साहत। तो फ़साहत के मायने हैं फ़साहत मतलब खुश कलामी, यानी फ़साहत के साथ बात करना, खुश बयानी। खुश बयानी भी इसका मतलब होता है। और इल्मी माने के मुताबिक कलाम में ऐसे अल्फाज लाता है जो रोज़मर्रा और मुहावरे के ख़िलाफ़ ना हो और मौक़ा व महल के मुताबिक हो। और चौथा लफ्ज़ है सनम, स्वाद नून मीम, सनम यानी सनम बुत को कहते हैं। बुत, मूर्ति या पुतली। तो सनम बुत, मूर्ति या पुतली को कहते हैं। किसी चीज़ का बना हुआ ग़ालिब, किसी चीज़ के बने हुए ग़ालिब को सनम कहते हैं।
पांचवा लफ्ज़ है खताकार, खै तोय अलीफ खता कार, काफ अलीफ रे कार, खताकार। खताकार मतलब हुसूरवार, खाफ स्वाद वाऊ रे हुसूर, वाऊ अलीफ रे वार हुसूरवार, गुनहगार, यानी जिसने कोई खता की हो उसको खताकार कहते हैं, यानी जिससे कोई गलती हुई हो, जिससे कोई खता सरजद हुई हो, उसको खताकार यानी खता करने वाला, यानी कसूरवार, गुनहगार। तो 5 मुश्किल अल्फाज के मायने यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा, पहले सेगमेंट में हमने एक छोटी सी कहानी सुनी, दूसरे सेगमेंट में हमने हरूफ तहजी के पहले शुरुआती 5 हरूफ को कैसे पढ़ेंगे ये समझा हमने, और तीसरे सेगमेंट में हमने 5 मुश्किल अल्फाज के मायने सीखे हमने। अब तो आपने क्या करना है कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। एक नोटबुक में आप चाहें तो इन मुश्किल अल्फाज के मायने भी नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि बार बार फिर से आपको वीडियो में आकर देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग्स जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह की राय देनी है तो अपने राय का इजहार ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, ताकि आगे से वीडियो बनाने में हमारे लिए काम आ सके। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।